Good morning, student of class 5. How are you, student? I hope you all are fit and healthy and enjoying your teaching from home. So, student, take out your book, open page number 111. Okay, open page number 111 and take one rough copy also and one pen with you so that you can note down the important points from the board. Today date is 15/10/2020, chapter 19, and name of the chapter is Towards Independence. अब slowly slowly हम लोग इतने ईयर हो गए, द ब्रिटिश पीपल आर रूलिंग ऑन अस, नाउ वी आर नियर टू आवर इंडिपेंडेंस. इज इट क्लियर? So student, so before starting the today topic, that is other young leaders, let do recapitulation, very small recapitulation what we have done in our previous video. So small recapitulation we will do of that topic, and then I will teach you a new topic. So in previous video we discuss about non cooperation movement. So what is the agenda of this non cooperation movement, or even you can say असहयोग्य आंदोलन? इन हिंदी भी से कॉपरेशन मतलब हेल्प ही होती है ना. सो नॉन कॉपरेशन मीन्स असहयोग्य आंदोलन, इसे हिंदी में ये बोला गया. ठीक है. सो व्हाट आर द एजेंडाज ऑफ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? दैट disobey the British and their laws peacefully. Today I am not writing that points on the board, because in previous video I written each and every point on the board and then I explain. Today I am doing recapitulation, so I will recapitulate it directly by lecture method. Today I am not going to write points on the board. So listen it what we have done in previous video. See, one of the agenda of this non-cooperation movement is that to disobey the British rule but peacefully, because महात्मा गांधी ऑलवेज फॉलो, उन्होंने हमेशा क्या कौन सी पाथ फॉलो की? नॉन वायलेंस का रास्ता चुना उन्होंने. नॉन वायलेंस मीन्स दैट ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट द पाथ इज ऑफ ए नॉन वायलेंस. ये नहीं कि अपनी बात रखने के लिए लड़ाई झगड़ा मारपीट, ऑल दिस थिंग्स किस में आती है? वायलेंस में. जैसे आर्मी ब्रिटिश पीपल थी, तो क्यों ना हम भी अपनी आर्मी बनाते, हम उनसे लड़ते, वो हम पे गोली चलाते, हम भी जैसे वो हमें मारते थे. या अभी जलियांवाला बाग मैंने आपसे डिस्कस किया था ना कि जनरल डायर ने इन क्लोज द एंट्री ऑफ दैट जलियांवाला बाग एंड ordered his soldier to fire on the Indian peoples. So that is a violence. But Gandhi ji totally follow the path of non-violence. Is it clear? He totally follow the path of a non-violence.
Now see student, this is one of the agenda. Second thing, what is that? Don't buy foreign goods. This is the second point of this non-cooperation movement. Don't buy foreign goods. We will not buy foreign goods. ठीक है, फॉरेन का कोई सामान नहीं खरीदेंगे. थर्ड इज, many student don't stop going to the colleges and schools which are established by the British government at that time. Is it clear? Because देखो student, 200 years they have done rule on India, and on each and every part of the, in each and every part of India they have a control. पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश का था. ठीक है. सो वट एवर जो भी प्रॉफिट होता था, दैट इज टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, and that is a reason there is lot of people in the India, they are very poor and they are facing lot of problems, because there is a British administration, and each and every profit which they are getting, that profit totally goes in the hand of the British government. So that is the reason the people of India are very poor, and even the lot of problems people are facing at that time. Lot of problems they are facing at that time. So, and this is the third point, that the students stop attending the colleges and the schools. Okay. And fourth point is people refusing whatever work is given by the British people to Indians. इज इट क्लियर? देखो, ये जो महात्मा गांधी ने जो पॉलिसीज स्टार्ट की थी, ये बहुत बेटर थी. सी, ब्रिटिश नंबर ऑफ पीपल्स in front of the Indian population, they are very less. They are very less. They have a control on each and everything of India. Now they build many factories, schools, building many things they have done in India. And manpower, which manpower they are using? They are using Indians for that. आप अभी भी गर्मियों की छुट्टी में कई प्लेसेस विजिट करने जाते होंगे, तो आपको गाइड्स बताते होंगे ये अंग्रेजों के समय बना था. अंग्रेजों के समय की जो बिल्डिंग्स बनी है आज भी वो हैं. तो ब्रिटिश पीपल इतने ज़्यादा थोड़ी ना बेटा इंडिया में आए थे, लेकिन उनका पूरा कंट्रोल हो गया था. उन्होंने इंडियंस को पैसे दे दे के सारा जॉब और काम कराते थे. पूरे मैन पावर जो थी, दैट इज ऑफ ए इंडियन पीपल्स. सो ऑन दिस थिंग्स गांधी जी वर्कआउट, कि सब कुछ दे आर स्मूथली फंक्शनिंग. ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ स्मूथ, कैसे स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है ऑन द शोल्डर्स ऑफ इंडियन पीपल. यही चीज उन्होंने रियलाइज की और लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट किया, उन्हें भी रियलाइज कराया कि फ्रॉम सो मेनी ईयर्स व्हाई द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इज रूलिंग इन इंडिया. Their population is very less in front of the Indian. But how such a long time? Reason is that they are using manpower of Indian peoples. तो इसी के लिए लोगों को मोटिवेट करना था. अगर हम सारा काम ही करना उनका बंद कर देंगे, तो क्या ब्रिटिश से लोग आएंगे वो काम करेंगे? नहीं, बिकॉज दे हैव देयर ओन कंट्री. अगर उस कंट्री के सारे लोग यहां आ गए, तो उनकी कंट्री पे हो सकता है कोई और अपना शासन कर ले. इज इट ट्रू ना? अगर हम इंडियन यूनाइटेड हो गए, वी स्टॉप बाइकआउट ऑल द थिंग्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, देन फ्रॉम वेयर द पीपल विल कम इन इंडिया टू डू दिस वर्क. हाँ, डिसीजन डेंजरस था, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज जुड़ी थी उस ओल्ड टाइम में, हु आर डूइंग जॉब अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो बड़ा हार्ड डिसीजन था. सो
जस्ट थिंक अबाउट इट कि इन लीडर्स ने व्हाट अ गुड मोटिवेशन दे हैव डन ऑफ द पीपल। कहते हैं ना ब्रेन वॉश करना, क्या बढ़िया मोटिवेशन किया होगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड था। आप किसी से बोलो कि वो आपके संग गलत कर रहा है, आप अपना जॉब छोड़ दो, कोई उनके अंडर में काम नहीं कर, ये सुनने में आसान है, लेकिन इट इज अ वेरी हार्ड डिसीजन टू लेफ्ट द जॉब, क्योंकि हमारे संग फैमिलीज जुड़ी होती हैं, बच्चे होते हैं, दिमाग में आने लगता है कि इफ वी आर नॉट अर्निंग द मनी देन हाउ वी विल फीड आवर फैमिली। लेकिन यही चीजें महात्मा गांधी ने लोगों को मोटिवेट किया, उन्होंने लोगों में नेशनलिज्म को जगाया कि फॉरगेट दैट यू बिलोंग्स टू एनी कास्ट और एनी रिलीजन, जस्ट थिंक इट, you are living in India, you are Indian, you are Indian. So these types of things have been done in that time, and that is the reason only we get a freedom from the British administration or British rule. Okay, so this we have discussed in previous video also. Now today let I write name of the some young leaders of Indian National Congress. Other young leaders. Many other young leaders also joined the movement with गांधी जी, और गांधी जी के संग बहुत से यंग लीडर भी इस मूवमेंट में उन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, एंड दीज लीडर्स आर देवर जवाहरलाल नेहरू, I know all the students, you all are aware of this name, Jawaharlal Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of India, and even on 14 November we celebrate Children Day also, and this is started by Pandit Jawaharlal Nehru. Okay, so we celebrated Children Day also. Jawaharlal Nehru, second name is of Subhash Chandra Bose, Sardar Okay, so these are the names of the young leader who also joined with Mahatma Gandhi. Jawaharlal Nehru, first Prime Minister of India. Subhash Chandra Bose, the first Indian Army, that is Jai Hind Force. Indian, that is it was formed by Subhash Chandra Bose. Okay,
and Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abdul Kalam Azad, Sarojini Naidu. She also participate in civil disobedience movement. अभी ये बताएंगे आपको. Sarojini Naidu and Dr. Rajendra Prasad, first president of India. Okay, first president of India. So these are the other young leaders who joined the movement started by Mahatma Gandhi ji. Okay, now student, now I will tell you about the SALT law and civil disobedience movement. What is this? Okay, and what is the reason on which I explain you this, the SALT? First I explain you the SALT law. Some of the important points I am writing on the board, on which I will explain you the things so that you can understand in a simple way. Is it clear? So that points I will write on the board, and after that I will explain you. Okay, see student, these are the points on which I will focus you. What is the reason of the, what is the SALT law and civil disobedience movement? Okay, now what happened at the time of a British rule? Now see what did
I already explained you that on and every part of the India, they have taken a full control on our country. Okay, so whether now what they have, the law which they have passed, that is the British people pass a law मतलब कोई कानून बनाना, ठीक है। जैसे देखो संविधान में बहुत से कानून हैं, उसमें संशोधन भी होता है सब कुछ, लेकिन जो चीजें बन जाती हैं कानून में एवरीवन उसको फॉलो करता है। अगर आप लॉ के अगेंस्ट जाते हो तो दैट यू गेट अ पनिशमेंट फॉर दैट आल्सो, ठीक है। आपको जेल भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है, आपको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। जैसे कट मैंने तुम लोग को एक चैप्टर में बताया था ना, कटिंग ऑफ ट्रीज। अब किसी भी ग्रीन ट्री को आप कट नहीं कर सकते हो, अगर आप ऐसा करते हो तो आप पे केस हो जाएगा। आप किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को मार नहीं सकते हो। सलमान खान का देखो अभी भी हिरन वाला केस चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है ना। तो ये एक लॉ बन गए, कानून बन गए हैं। अगर और दिस इज सेम फॉर द ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया। ये नहीं कि मेरे लिए है आपके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है, ऐसा नहीं। व्हाट एज लॉ क्या होते हैं, जो रूल्स जो बनते हैं, that is the same for the all the people living in that country. So at the time of a British rule, they pass a law that no Indian allowed to make salt. So this is the reason of a salt law, the salt law and civil disobedience movement. This is the reason for salt law and civil disobedience movement, ठीक है। यही रीजन था, क्योंकि ब्रिटिश पीपल ने क्या लॉ पास कर दिया कि इंडियन साल्ट टीम नहीं बना सकते। सो दिस इज द अगेंस्ट दिस रीजन व्हाट डिड गांधी जी डू। गांधी जी थॉट दैट, जिस तरह देखो बेटा हमारे लिए एयर वाटर बहुत कंपल्सरी है, इन द सेम मैनर साल्ट इज आल्सो वेरी कंपल्सरी। विदाउट इट आल्सो लाइफ इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? सो एंड और सबसे बड़ी बात, साल्ट एक ऐसी चीज है, ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को ज्यादा साल्ट चाहिए, ठीक है, पैसे वाला है। अरे ये तो बेसिक नीड है, वेदर द पर्सन इज रिच और वेदर द पर्सन इज पोअर, एवरीवन नीड दिस साल्ट। सो स्टूडेंट एट दैट टाइम दे मेक ए लॉ दैट द इंडियन पीपल्स, according to this law, the Indian peoples are not allowed to make the salt, and even the British government they apply a tax on the salt, हाई टैक्स लगा दिया उन्होंने साल्ट पे। देखो क्योंकि उनको पता था साल्ट तो ये तो एक बेसिक नीड है सबकी, वेदर यू आर रिच और वेदर यू आर पोअर, हर किसी को साल्ट चाहिए, विदाउट साल्ट नथिंग इज पॉसिबल। तो उन्होंने क्या किया, तो एक तो इंडियंस को साल्ट बनाने से रोक दिया, ठीक है। अनदर क्या किया, उन्होंने हाई टैक्स लगा दिया साल्ट पे। इसका मतलब एक तो वैसे इंडियन पीपल्स, द कंडीशन ऑफ द पीपल, they are facing lot of problems. Many poor peoples are in our country, that is India. At that time many poor people, even they don't have food to eat, and what they have done, they have they put high tax on the salt. So how this is possible for the poor people to buy the salt, ठीक है। तो जब हाई टैक्स लगा दिए, इंडियन लोग भाई साल्ट बना ही नहीं रहे हैं, और साल्ट जो एक बेसिक चीज है, हर किसी को जरूरत है, उसका हाई रेट पे आपको अगर उसकी कॉस्ट हो गई, तो पुअर पीपल कैसे साल्ट लेंगे? बोलो, इट इज पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज द रीजन लॉ वाज अनजस्ट एंड डिसाइडेड टू अपोज इट। ये लॉस बिल्कुल जस्टिस नहीं थी, क्योंकि देखो अगर बेसिक चीज है, जैसे वाटर है, वाटर के बिना लाइफ नहीं है, एयर है, वाटर है, मान लो वाटर की इंडियन गवर्नमेंट कह दे कि वाटर 10,000 रुपीज में 1 बॉटल मिलेगा, सारी दुनिया पब्लिक आ जाएगी रोड पे गवर्नमेंट से लड़ने के लिए, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है। सो तो
अब इन्होंने ऐसी चीज पे टैक्स लगा दिया, उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ा दी, अब हाउ द पुअर पीपल बाई द साल्ट? सो नाउ सी स्टूडेंट, दैट इज द रीजन गांधी जी अपोज दिस लॉ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉ का गांधी जी ने क्या अपोज किया, इसका विरोध किया। नाउ व्हाट ही डू? नाउ गांधी जी डिसाइडेड, गांधी जी ने डिसाइड किया, ही इज लिविंग इन फ्रॉम हिज आश्रम, और उनका आश्रम कहां था बेटा? साबरमती, एंड इट इज इन अहमदाबाद। ओके, एंड फ्रॉम वहां से उन्होंने मार्च स्टार्ट की, जिसे दांडी मार्च बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं बेटा? दांडी मार्च। दांडी क्या लिखा है? दांडी मार्च in 1930. It is not given, year is not given in their book. I have written on the board, you can note down from here. So दांडी मार्च, तो उनका आश्रम कहाँ था बेटा? गांधी जी का आश्रम था साबरमती में, इन अहमदाबाद। टू अ सी विलेज ऑफ दांडी, और ये दांडी विलेज जो था, सी विलेज, ये सी मतलब ये विलेज, सी विलेज मीन्स ये विलेज क्या समुद्र के किनारे था। इज इट क्लियर? एंड द डिस्टेंस फ्रॉम गांधी जी आश्रम से, जो कि साबरमती अहमदाबाद में था, वहां से इसका डिस्टेंस कितना था? 300 किलोमीटर। एंड गांधी जी कवर दिस डिस्टेंस वाइल वॉकिंग। सोचो कितना जोश हुआ करता था लीडर्स में उस समय। आज स्कूल में आप छुट्टी होती है, खड़े हो जाते हो वैन के इंतजार में, मम्मी पापा के इंतजार में। बेटा बहुत स्ट्रगल हुई है, देन वी गेट दिस फ्रीडम। दैट इज द रीजन एवरी ईयर वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। इसीलिए इन्हें क्या नेशनल फेस्टिवल बोला जाता है, रिपब्लिक डे और 26 जनवरी। देखो हिंदूज के अपने फेस्टिवल्स होते हैं, मुस्लिम्स के अपने फेस्टिवल हैं, क्रिश्चियंस के अपने हैं, सिख धर्म के लोगों के अपने फेस्टिवल हैं, लेकिन एज ए इंडियन दिस फेस्टिवल इज कॉमन फॉर ऑल द पीपल्स हु आर लिविंग इन दिस कंट्री, वेदर दे belong to any religion or whether they belong to any caste. That common festivals are here Independence Day and 26 January Republic Day. These are here beta national festival है, ठीक है? Every person who is living in India, they will participate in this festival. Clear? So see Gandhi ji, he covered a 300 kilometer distance on walking, and then it reached a village that, and this is known as Dandi March and village of Dandi. Dandi March इसलिए बोला गया क्योंकि उस विलेज का नाम दांडी थी, दांडी था उस विलेज का नाम। and this village is in Gujarat. You can note down in your copy, not given in your book. अगर आपसे कोई पूछ ले कि दांडी विलेज जो सी के किनारे था, वेयर इज इट, तो इट इज इन गुजरात, इट इज इन गुजरात। ओके, एंड देयर गांधी जी मेक द साल्ट, वहां उन्होंने जो ब्रिटिश लॉ था उसके अगेंस्ट वो किया। इसी को बोलते हैं बेटा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मींस जो लॉ था उसको ब्रेक किया, लॉ था नहीं काम करना, उन्होंने फिर भी साल्ट बनाया। इज इट क्लियर? सो यही है साल्ट लॉ, कह सकते हो साल्ट लॉ एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इट मींस गांधी जी ब्रेक द लॉ एंड मेक द साल्ट। आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस, और गांधी जी स्टार्टेड फ्रॉम हिज आश्रम विद ओनली 73 फॉलोवर्स थे उनके बेटा, जब वो आश्रम से चले थे गांधी जी। एंड द डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर जो उन्होंने वॉकिंग डिस्टेंस, जो वो वॉक करके गए दांडी विलेज तक 300 किलोमीटर डिस्टेंस में, यू आर सरप्राइज टू नो मोर देन 50,000 पीपल ज्वाइन गांधी जी। यहीं से नेशनलिटी की भावना जागी लोगों में। उन्होंने कोई माइक लेके हल्ला नहीं किया कि मैं जा रहा हूं साल्ट बनाने, कौन मेरे संग चलेगा। उनके आश्रम में 73 मेंबर्स थे, 73 लोग चले थे, और इन कवरिंग ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ ए 300 किलोमीटर मोर देन 50,000 पीपल ज्वाइन दिस दांडी मार्च विद गांधी जी। इज इट क्लियर?
So student, we got the freedom, not very, we बहुत आसानी से फ्रीडम नहीं मिल गई है. ओके, सो वी हैव sacrificed our life also for getting the freedom. So thank you student. In the next video I will explain few more points on this topic.